हेलो गाइस। लास्ट सेशन में हमने नक्सलिज्म के इश्यूज डिस्कस करे थे, जिसमें पहला इशू था रिलेटेड टू जल जंगल जमीन। विद इन दैट वी हैड डिस्कस 6 इशू एंड द 7th इशू वाज नॉन फुलफिलमेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म प्रोमिसेस। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद लैंड रिफॉर्म्स जो है, व्हाट इज इट एंड व्हाई इट वाज डन, एंड लैंड रिफॉर्म के अंदर गवर्नमेंट ने क्या-क्या करा था, लैंड सीलिंग्स, कंसोलिडेशन, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज दैट इज जमींदार्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड बिफोर स्टार्टिंग देयर आर 3 क्वेश्चंस दैट वी विल बी आंसरिंग टुडे। द फर्स्ट वन इज कि हाउ इज नक्सलिज्म कनेक्टेड टू नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। कि हमने इशू तो बता दिया कि लैंड रिफॉर्म इज वन ऑफ द इशू, उसकी नॉन फुलफिलमेंट या नॉन इंप्लीमेंटेशन, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की वजह से नक्सलिज्म का राइज हुआ। बट हाउ इट हैपेंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स, the 4 points that we discussed: land ceiling, zamindari abolition, tenancy reform, right? So these 4 points that we will be discussing. And the last one is why is it important to study land reforms. So we will start with the first question here, ki what do we understand by land reforms, and slowly while understanding this we will establish the interconnection between the two, ki how it led to the rise of naxalism, and then at the end we will understand ki why it is important to study land reform for GS paper 3. So the beginning, as you can see, land reforms are nothing but changing of laws, regulations, customs regarding land ownerships to build an egalitarian social order. Okay, so there existed many laws in a pre-independence era which actually led to the exploitation of landowners and more exploitation of tenants working under those landowners. For example, Land Acquisition Act of 1894, Santhal Pargana Tenancy Act. So all these acts that existed did not provide protection to the tenants cultivating the fields of the landowners or the zamindars. Okay, so इन्हीं laws, regulations and customs को change करना so that egalitarian social order can be established. Earlier there used to exist Britishers, under Britishers used to be zamindar, and within zamindar used to be tenants. Now there used to be a hierarchy from Britishers to zamindars to tenants. Okay, but in the post-independence India, it started with bigger zamindars. Under those existed smaller zamindars, and then tenants zamindar के नीचे. So to establish the egalitarian social order, we started tenancy reforms. So why was there need? ठीक है, टेनेंसी रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स ओवरऑल जो है उनको इनिशिएट करने का। द फर्स्ट वाज इकोनॉमिक। देयर एक्जिस्टेड एब्सेंटी लैंड ओनरशिप। ओके, कि जो जमींदार होते थे वो सिटीज़ में चले जाते थे और विलेजेस में वो फर्दर जमींदार्स को हायर करने लग जाते थे, जो टेनेंट्स जो होते थे इनके अंडर काम करते थे। इस रीज़न की वजह से एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, बिकॉज टू अर्न द प्रॉफिट दे वुड चार्ज मोर रेंट ऑन द टेनेंट्स सो दैट दे कैन हैव सम प्रॉफिट इन्वेस्ट दे कैन रिटर्न टू द ओरिजिनल जमींदार्स। इस वजह से टेनेंट्स के पास लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकम नहीं बचता था, बिकॉज दे हैड टू लुक आफ्टर फॉर देयरसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। तो लैंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचते थे, इस वजह से अंडर डेवलप हो गया था एग्रीकल्चर एंड इट ऑल्सो बिकेम स्टैग्नेंट। इसी वजह से फूड सिक्योरिटी हमारा जो नेशन का था वो इनसिक्योर हो गया था, एंड दैट इज वाई लेटर ऑन इन द 1960s एंड 70s वी स्टार्टेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड started high yield variety seeds to increase the food production, leading to further the food security of the nation. Okay, so that is why land reforms were initiated to ensure that there could be agricultural growth. Now coming to the next point, abhi we talked about ki zamindar hired zamindars under them and who charged tenants way more than they actually should have, which led to the exploitation of tenants due to high rents and tenure insecurity. अब इस zamindar को high rent चाहिए, and this zamindar has given the land to the cultivator or the tenant for 5 years, but realizing after a year or two that the tenant is not able to pay the rent desired, so now this zamindar will give this land to some other tenant. Okay, अब इस ज़मींदार के पास, इस टेनेंट के पास ना लैंड है ना इनकम का सोर्स है, एंड जो पहले 2 साल उसने काम किया उसमें उसको हाई रेंट भी पे करना पड़ा। नाउ दिस टेनेंट लिव्स इन डिलैपिडेटेड कंडीशंस, फर्दर लीडिंग टू हिज एक्सप्लॉयटेशन। ओके, द नेक्स्ट इशू इज सोशल इनइक्वालिटी, लोअर कास्ट वर्कड एज टेनेंट्स, एंड द लास्ट वाज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ओके, नाउ अगर लैंड रिफॉर्म्स होता है, कंसीडरिंग कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, नाउ द टेनेंट विल गेट सम लैंड। इफ द टेनेंट गेट्स लैंड, ही विल बी एबल टू डू द एग्रीकल्चर ओवर देयर। ठीक है, उससे इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो उसका सोशल लाइफ, सोशल स्टेटस, ओके, एंड ही विल कम इंक्रीज होगा, एंड द पर्सन विल बी एबल टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी। And the last one is your political. That in the pre-independence British era, the government acquired the land using the concept of eminent domain, which is nothing but the government can acquire any property, stating that it belongs to the government. Okay, this is the concept of eminent domain, which says that all the property, all the physical property belongs to the state, and they can take any property without giving compensation to the landowners. So under this, they started acquiring land. So these were the needs or objectives for which land reforms were initiated. Now, as discussed, land reforms in the post-independence India. First was your zamindari abolition, second was land sealing, third was tenancy reforms, and the last one was land consolidation. So we will start with the first one, zamindari abolition. What was it? Same, the British government hired zamindars as intermediaries who gave the land to tenants for cultivation for a certain number of years. So this was initiated. Why? To remove these intermediaries so that there could be equitable distribution of land to the tenants. How did the government bring the zamindari abolition? They introduced the first Constitutional Amendment Act of 1951, under which they introduced the 9th schedule, which allowed the state government to protect the laws which were enacted to abolish the zamindaris. Right? इसी से related है famous case which is called your IR Coelho case. Now within this case, the Supreme Court stated that initially what happened was under 9th schedule, state government could place any law, right, which was initiated or which was enacted to abolish zamindari, and it was protected from judicial review. But in the IR Coelho case, the Supreme Court said कि after 24th of April 1973, which is when the famous Keshwanand Bharati case happened, the Supreme Court said कि इसके बाद जो भी cases हैं या जो भी laws हैं which have been added to the 9th schedule, they will be open to judicial review, because judicial review is basic structure, basic part of the constitution. So this is what happened in IR Coelho case. Now why was this done? Understand कि स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों बनाती है जमींदारी एबोलिशन से रिलेटेड लॉ? द रीजन फॉर दिस इज
कि लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट सब्जेक्ट, ओके, एंड वेयर एज द लैंड एक्विजिशन बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड LARR एक्ट 2013, वेयर एज laws related to zamindari abolition have been made by the state governments, and these laws can be placed under the 9th schedule, and under this law central government will make a basic skeleton related to land acquisition, and the state government will have to make their own land acquisition acts following this skeleton, and they cannot go against the skeleton given by the central government, which is nothing but 2013 LARR act. Understood? Now what are the positives of this zamindari abolition? It led to the greater than 15 lakh hectares of land acquisition. अब जितने भी लैंड थे वो ना टेनेंट्स के थे इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, ना जमींदार के थे। जमींदार वर नथिंग बट हैंडलिंग द लैंड फॉर द ब्रिटिशर्स। तो जब ये जमींदारी एबोलिशन हुआ, सारे के सारे जो लैंड अंदर जमींदार थे वो फ्री हो गए। अब जब वो फ्री हो गए तो ये सारे के सारे लैंड टेनेंट्स को देना गवर्नमेंट देने लगी। जब देने लगी, ठीक है, तो इट लेड टू व्हाट, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बट इसका दूसरा बेनिफिट भी ये हुआ कि बहुत सारे जमींदार जो थे वो सिर्फ लैंड लेके अपने पास रखे थे, उसमें कल्टीवेशन नहीं करते थे। दे स्टार्टेड कल्टीवेशन, फर्दर लीडिंग टू द इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू HYV सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s एंड 70s, एंड एट द एंड इट लेड टू द एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, एज वी डिस्कस कि ब्रिटिशर्स के अंदर जमींदार, उनके अंदर टेनेंट्स, एंड दे वर्कड अंडर द जमींदार्स एंड पेड हाई रेंट। किसी साल अगर मौसम खराब हो गया, फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया, राइट, सो दे डू नॉट हैव एनी सरप्लस। इफ दे डू नॉट हैव एनी सरप्लस एंड सो उनके पास अमाउंट ड्यू होता है जो उनको जमींदार को देना होता है। नाउ जमींदार को जो अमाउंट ड्यू देना होता है उसके लिए वो कहीं और से पैसे लेते हैं, राइट, मनी लेंडर्स। अब इनको अगर इनको पैसे चुकाने हैं तो फिर इनके फील्ड में काम करना शुरू करते हैं फ्री में, जिसको कहते हैं बेकार। एंड इफ दे आर नॉट एबल टू पे, आइदर दे हैव टू डू द बेकार वर्क और दे हैव टू डू द फोर्स्ड लेबर। सो zamindari abolition also led to the abolition of these things, thus protecting the tenants and ensuring the enforcement of Article 23 of the Constitution, which is nothing but prohibition of traffic in human beings and forced labor. This is what we are talking about: begar, bonded labor, and forced labor. When we talk about the negatives, negative impact, there was not much negative impact, but there were some issues which did not let the fulfillment or exact achievement of the zamindari abolition. क्योंकि first one is absence of land records. ठीक है, अब गवर्नमेंट डेटा में नहीं है कि कितने जमींदार एग्जिस्ट करते हैं और जितने जमींदार हैं उनके पास कितना लैंड है, तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक द लैंड फ्रॉम दीज जमींदार्स एंड कंसोलिडेट देम। ठीक है, सेकंड, डिले ड्यू टू एक्सेसिव कोर्ट केसेस, जमींदार टर्न टेनेंट देमसेल्फ। अब गवर्नमेंट को कहाँ पता हुआ कि वो जमींदार है कि वो टेनेंट था? वो गवर्नमेंट को ये दिखाते थे कि माई बाप हम खुद इस खेत में काम करते हैं, बस गवर्नमेंट को ये बोलना है जो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आ रहा है, एंड शो देमसेल्फ एज अ टेनेंट, तो गवर्नमेंट उनसे लैंड नहीं लेगी। एंड न्यू जमींदार क्लास फॉर्म्ड। व्हाट वर दीज न्यू जमींदार क्लास? गवर्नमेंट जमींदार को लैंड देती थी जो लीज करते थे टेनेंट्स को। अब ये टेनेंट्स क्या करते थे, ये लैंड फर्दर दूसरे इंफीरियर टेनेंट्स को देने लग जाते थे। इस वजह से दिस वाज द न्यू क्लास दैट स्टार्टेड कमिंग व्हिच एक्टेड एज जमींदार। सो लेट्स रिवाइज वंस। लैंड रिफॉर्म्स क्या है? लॉ, कस्टम्स, रेगुलेशंस जो लैंड है उनको रीडिजाइन करना टू इंश्योर व्हाट, egalitarian social order. Okay, and why was there a need to start land reforms? There were social reasons, there were economical reasons, and there were political reasons. Social being कि जो टेनेंट्स होते थे वो हमेशा लोअर कास्ट से होते थे, विच लेड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन अलॉट। इकोनॉमिक रीजंस क्या होते थे? जो जमींदार होते थे वो हाई रेंट चार्ज करते थे और उस हाई रेंट के साथ देयर वाज नो गारंटी ऑफ टेन्योर, एंड द पॉलिटिकल रीजन ऑफ एमिनेंट डोमेन। नाउ विद इन दैट फर्स्ट वन दैट वी डिस्कस वाज व्हाट, जमींदारी एबोलिशन। ओके, ये कब आया? थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which added 9th schedule which protected zamindari abolition law created by state governments. Okay, and further IR Coelho case which came in 2007, it said कि जो भी law which were put after 19th April 1973 will be under judicial review because it is the basic structure of the constitution. And then we discuss the positives and the negatives of zamindari abolitions. Negatives is nothing but the limitations जिसने effective implementation नहीं होने दिया zamindari abolition का. So this is something that we have discussed so far. Now comes the second reform which was land sealing. अब लैंड सीलिंग कुछ नहीं है, कैपिंग द साइज ऑफ लैंड हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और फैमिली, कि एक बंदा या एक फैमिली जो होगा वो कितना लैंड रख सकते हैं, राइट, कि 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर। सो दिस वाज द लिमिटेशन व्हिच वाज प्लेस्ड कि कितना लैंड एक इंडिविजुअल फैमिली अपने पास रख सकता है। बट व्हाई वाज दिस डन? दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द सरप्लस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके टू टेनेंट्स, राइट, एंड टू कोऑपरेटिव फार्मिंग कम्युनिटीज। अब सरप्लस लैंड का क्या मतलब है कि एक जमींदार है, किसी के पास 100 हेक्टेयर लैंड है, बट एक टेनेंट है जो 1 हेक्टेयर लैंड में कल्टीवेट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे टेनेंट्स हैं, तो इस लैंड को सारे टेनेंट्स के बीच में इस तरीके से इक्वली या तो डिवाइड किया जाता था या सेम लैंड को बहुत सारे टेनेंट्स या फार्मर्स को दिया जाता था जहां वो कल्टीवेट कर सके क्रॉप्स को, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड नथिंग बट द कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव कल्टीवेशन। द पॉजिटिव्स ऑफ दिस वर, जो फैलो लैंड था, जो बहुत टाइम से जिसमें कोई खेती नहीं हो रही थी, ठीक है, बट एग्रीकल्चर रिलेबल था, वो इंक्रीज हो गया, फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई नेशन की, ग्रेटर देन 40 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, पॉवर्टी रिड्यूस हुई बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। व्हाट वर द नेगेटिव्स ऑफ इट? कि जो जमींदार हैं उन्होंने लूप होल फाइंड कर लिया और जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसको अपने काम करने वाले या किसी रिश्तेदार के नाम कर दिया, जिसको कहते हैं बेनामी। इनिशियली जो सीलिंग्स इंपोज हुई थी वो इंडिविजुअल पे इंपोज हुई थी कि एक इंडिविजुअल कितना हेक्टेयर या कितना एकड़ ऑफ लैंड अपने पास रख सकता है, बट नॉट फैमिली। तो इसका फायदा उठा के फैमिली ने जो इंडिविजुअल मेंबर्स के पास जो लैंड थे उनको कंबाइन करके ओवरऑल फैमिली के नाम कर लिया, एंड दे केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग दिस लैंड। एंड द लास्ट वन इज कि अगर लैंड जो थी लैंड सीलिंग भी हो गई और टेनेंट के पास लैंड भी आ गया, लेकिन जब वो बैंक जाता था, ठीक है, तब भी उसको क्रेडिट नहीं मिलता था, राइट। और अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो इनपुट कहाँ से आएंगे खेती के लिए? इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं होगा, दैट इज हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएगा, और हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएगा तो स्टिल द पर्सन विल रिमेन इन द पॉवर्टी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट
issue was कि it promoted land fragmentation which acted as threat to land consolidation. अब land consolidation क्या था कि कंसिडर करते हैं ये फील्ड 1 है, ये फील्ड 2 है, ये फील्ड 3 है। इस फील्ड का फार्मर ए, बी और सी, बट इस फील्ड में 3 फार्मर जो हैं ए, बी, सी, ए का लैंड भी है, बी का लैंड भी है, सी का भी है। सेम वहाँ ए, बी, सी का लैंड, सेम वहाँ ए, बी, सी का लैंड। तो अब ये अलग-अलग जगह पे जाके खेती करेगा ए वाला। तो लैंड कंसोलिडेशन में क्या होता था, किसी के पास जो लैंड फ्रेगमेंटेड था, बहुत लोगों में जो डिवाइडेड था, एक तरीका ये था कि ये फ्रेगमेंटेशन को कंबाइन कर लो और ये सारे लैंड पे अब ये ए खेती करेगा, इस पे बी करेगा, इस पे सी करेगा। एक ये है लैंड कंसोलिडेशन। एंड दूसरा था कि एक फैमिली का जो मेंबर होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, अगर उसके 2 बच्चे हैं, तो उसके पास अगर 10 हेक्टेयर लैंड है, तो वो फर्दर डिवाइड करता है 5 में। देन अगर उनके बच्चे होते हैं, तो वो फर्दर एक-एक डिवाइड करता है। तो दिस लेड टू व्हाट? लैंड फ्रेगमेंटेशन। तो जब हम लैंड सीलिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे कि एक इंडिविजुअल फैमिली या एक इंडिविजुअल मेंबर कितना लैंड एक्वायर कर सकता है, तो जो बड़ा लैंड एक्जिस्ट करता था एक फैमिली में, उसमें फर्दर डिवीजन होने लग गया। तो अगर डिवीजन होगा, तो एक लैंड से जो ओवरऑल आउटपुट निकलता था, अब इस लैंड से आउटपुट कम निकलेगा बिकॉज़ इनपुट बढ़ जाएगा, लेबर का कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हर एक फील्ड में सेपरेट काम करने वाला बंदा लगेगा। So this led to the overall increase in the land fragmentation and reduction in the output. Now this is important because 85% of farmers in India are small and marginal who have land less than 2 hectares. अगर आपके पास लैंड ही कम होगा साइज में, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टैब्लिश नहीं करने का मतलब है कि अगर आप जितना इनपुट लगा रहे हो, डिजायर्ड आउटपुट जनरेट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आप 1 रुपये लगा रहे हो, तो मैक्सिमम आउटपुट आप जो जनरेट कर पा रहे हो, वो होगा आपका फॉर एग्जाम्पल 1.03%। ओवरऑल आपका प्रॉफिट सिर्फ इतना ही होगा। बट अगर आपका लैंड का साइज बड़ा होता है, तो अगर 1 रुपये आप इनपुट में लगाते हो, तो यू कैन जनरेट अराउंड 1.5 टू 2 रुपीज़। सो लैंड फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो गया लैंड सीलिंग प्रपोजल की वजह से, एंड दैट लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ओके, अब यहीं देख लो कि ये जो फार्मर है, अगर इसके पास लैंड छोटा है, ठीक है, तो वो अभी भी आज भी यूज़ करेगा गाय बैलों को यूज़ करेगा। बट अगर इसके पास लैंड बड़ा होता, तो इसके पास पैसे होते, क्योंकि फसल ज़्यादा होती है, और फसल ज़्यादा होती, पैसे ज़्यादा होते, तो द पर्सन कैन यूज़ ट्रैक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, सोइंग, रीपिंग और डेली डेली की जो एक्टिविटी होगी वो फास्ट हो जाएगी, लीडिंग टू द इंक्रीज इन द आउटपुट। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि अपने इंडिया के जो फार्मर है, नियरली 85% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसी वजह से इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट, डिस्पाइट इंडिया प्रोड्यूसिंग 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रैक्टर्स। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारे जो फार्मर्स हैं, वो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, बिकॉज लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत स्मॉल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेनेंसी रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ टेनेंट्स टू प्रिवेंट फोर्सफुल एविक्शन फिक्सिंग रेंट्स बाय द गवर्नमेंट थ्रू लेजिस्लेशन। इसमें कुछ नहीं है, हर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपने, चाहे अगर वहाँ ट्राइब्स हैं तो ट्राइब्स के लिए कोई लॉ इनेक्ट करती है, या इन जनरल ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए लॉ इनेक्ट करती है, टू इंश्योर दैट वो जो टेनेंट वहाँ काम करते हैं उनको गारंटी हो सके कि रेंट हो जो कम से कम हो जाए, और जो टेन्योर सिक्योरिटी है वो इंश्योर किया जा सके उस टेनेंट के लिए, सो दैट द पर्सन कैन अर्न अ लाइवलीहुड। एंड व्हाई वाज दिस डन? सो दैट एज वी डिस्कस्ड। अब एक बात बताओ, अगर कोई टेनेंट है, किसी फील्ड में काम कर रहा है, और उसको ये लग रहा है कि जो ज़मींदार है या लैंड ओनर है, वो कभी भी उसको वहाँ से निकाल सकता है, ठीक है, तो वो उस लैंड में इन्वेस्टमेंट क्यों डालेगा? उसको अगर पता है कि ये लैंड से मेरे को कभी भी निकाला जा सकता है, तो उस लैंड में इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ वहाँ का जो सॉइल है, अच्छी सीड्स है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो ये जो टेनेंसी रिफॉर्म था, ये इसने एक चीज़ और इंश्योर किया, अलोंग विथ रिड्यूस्ड रेंट प्लस टेन्योर, कि जो लैंड है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया। बिकॉज़ नाउ टेनेंट फील सिक्योर कि उनके पास ये लैंड लॉन्ग टाइम तक रहेगा, अगर और इनको अगर अच्छा आउटपुट या अच्छा इनकम कमाना है, ठीक है, तो लैंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, पॉजिटिव्स क्या हैं इसके? बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने रेंट मैक्सिमम फिक्स कर दिया 25 से 35%। लैंड ओनरशिप राइट्स को टेनेंट्स को देने लग गए। वो बोले कि इफ यू आर वर्किंग, ओके, कंडीशंस फुलफिल करने का पहला रीज़न था, व्हेन यू विल बी एबल टू हैव द ओनरशिप ऑफ द लैंड, कि अगर आप कुछ सालों से, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, इट वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, किसी के लिए कुछ 10 साल है, किसी के लिए 20 साल है, अगर आप इतने साल से किसी फील्ड में काम कर रहे हो, तो ये लैंड आपका हो जाएगा। ओके, दिस वाज द पॉजिटिव्स, बट नेगेटिव्स भी एग्जिस्ट करते थे। व्हाट वर द नेगेटिव्स? कि ये जो एग्रीमेंट थे, ओरल एग्रीमेंट थे। अब ओरल एग्रीमेंट के कोई लीगल बैकिंग तो होती नहीं, कोई लीगल पेपर था नहीं, तो कभी भी टेनेंट्स को वहाँ से निकाल दिया जाता था। मसल पावर यूज़ करते थे लैंड ओनर टू हैरास द टेनेंट्स, अगेन रेंट इंक्रीज, रिड्यूस्ड टेन्योर। जो लीगली अवेयर थे टेन्योर, उन्हीं ने ये बेनिफिट उठा सके, बिकॉज़ एज़ इंडिया इज़ स्टिल 60% रूरल, okay, and people living in the rural India were not as educated as they are right now. They were not educated in the 1950s and 60s. Absence of land records made it difficult to determine, right, कि कहाँ टेनेंसी रिफॉर्म अगर हो भी रहा है, तो ओरिजिनल लैंड ओनर कौन है और कौन टेनेंट है और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड किसी किसी स्टेट्स में रेंट वर एज हाई एज 50% दैट वर टू बी पेड बाय द टेनेंट, अगेन लेड टू देयर एक्सप्लॉइटेशन। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लैंड कंसोलिडेशन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, दे पूल द लैंड एंड रीएलोकेट द लैंड टू द फार्मर्स। अब ये कैसे होता है? एज वी डिस्कस्ड, फार्मर ए, फार्मर बी, फार्मर सी। अब एक जो फार्मर है, ठीक है, ये यहाँ पर कल्टिवेशन के लिए जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो बहुत मैनुअल लेबर है, इनपुट ज़्यादा है और गारंटीड नहीं है आउटपुट, बिकॉज़ फ्रेगमेंटेड है लैंड। तो लैंड कंसोलिडेशन में कुछ नहीं होगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड है, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि इसको, ये इस एरिया में जो लैंड है, अब इसको फार्मर ए कल्टिवेट कर लेगा, इसको बी कर लेगा, इसको सी कर लेगा, तो उसका आउटपुट इंक्रीज़ होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएँगे, बिकॉज़ द पर्सन नाउ कैन इन्वेस्ट ऑल ऑफ हिज टाइम, एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट एट वन प्लेस, इंश्योरिंग इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। यही इसके पॉजिटिव्स भी हैं, लार्ज फार्म्स, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, साइंटिफिक फार्मिंग, मॉडर्नाइजेशन, बेटर क्रेडिट, मोर बार्गेनिंग पावर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। बट नेगेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लैंड कंसोलिडेशन हो पाना बहुत बार मुश्किल भी हो गया, रीज़न बीइंग कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, जिनके पास ऑलरेडी लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, उनको लगता था कि यार अगर मेरे को किसी और का लैंड मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि वो लैंड फर्टाइल ना हो, जिसमें वो काम कर रहे हैं उस लैंड के बारे में उसको सब कुछ पता है। बट जो नया लैंड मिलेगा, उसको लगता है कि कोई गारंटी नहीं है कि वो लैंड फर्टाइल होगा या
चांसेस है कि नॉन फर्टाइल भी हो सकता है, और अगर फर्टाइल नहीं है जैसा उसका ओरिजिनल लैंड है तो द पर्सन हैव टू वर्क फ्रॉम जीरो टू मेक द लैंड फर्टाइल, अगेन टाइम प्लस एफर्ट। अब फार्मर का इमोशनल कनेक्शन होता है लैंड के साथ, एंसेस्ट्रल लैंड के साथ, तो इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिपार्ट विद द लैंड, एंड ये रीजन भी अगर सफिशिएंट नहीं थे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल दे डिलेड द इंप्लीमेंटेशन। सो दीज वर ऑल द इश्यूज एसोसिएटेड विद द लैंड कंसोलिडेशन। तो ये हमने पढ़ लिए चार। फर्स्ट इज जमींदारी एबोलिशन, सेकंड इज लैंड सीलिंग, third is tenancy reforms, and four is land consolidation. So these were the major initiative that were started by the government of India post independence. But ये सिर्फ initiatives नहीं थे, कुछ और भी initiatives थे, like योर भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट बाय विनोबा भावे, जिन्होंने जिसमें उन्होंने वॉलंटरीली अपील की लोगों से कि अपना 1/6 लैंड जो है वो दे दो दान में, और इसी के फॉलो करके ग्रामदान मूवमेंट भी शुरू हुआ था, जिसका कंसेप्ट था कि विलेज विद नो प्राइवेट ओनर, की जो लैंड होगा पूरा का पूरा विलेज से बिलोंग करेगा और वहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग करी जाएगी, ठीक है, और उसके थ्रू इनकम अर्न करी जाएगी, नो इंडिविजुअल ओनरशिप का कंसेप्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इज दिस रिलेटेड टू नक्सलिज्म? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो नक्सल्स बनते हैं वो एक्चुअली में एग्रीकल्चरल लेबरर, फार्मर्स, ट्राइबल्स, ये सभी होते हैं, जिन और इन सब में एक चीज़ जो कॉमन होती है लैंड, जो उनका सब कुछ होता है, और जब इनसे वो लैंड ही छीन लिया जाता है जो इनका इनकम का सोर्स है, इनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का पार्ट है, राइट, इनकी आइडेंटिटी है, तो दे आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग। नाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कम्स नक्सल्स, जो उनको आइडियोलॉजी प्रोवाइड करते हैं एंड इंस्टिगेट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड दैट इज द रीजन ऑफ बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म। सो दिस इज हाउ नक्सलिज्म इज कनेक्टेड, एंड जो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू दीज पीपल, जब ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हुए, देन बिगिन 1967 नक्सलबारी एरिया से नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ। सो दिस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स टू द जमींदारी। नाउ नाउ द अदर इनिशिएटिव्स इंक्लूड नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसका बाद में नाम चेंज हो गया डिजिटल इंडियन लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें सारे के सारे जो लैंड है उनका डिजिटल मैपिंग कर दिया जाएगा, उनके डिजिटल रिकॉर्ड्स बना दिए जाएंगे, सो दैट यू कैन एक्सेस इट ऑनलाइन। एफआरए, दिस इज वी डिस्कस्ड, एंड एलएआरआर, दैट वी डिस्कस्ड इन ब्रीफ इन द लास्ट 2 सेशंस। सो दीस वर ऑल द इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स। नाउ comes the important question, why is it important to study the land reforms overall and specifically for GS paper 3? The reason for this is, within the GS paper 3 economy, this is one point of your syllabus जिससे पिछले 13 सालों में 6 बार सवाल आ चुके हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर इन एन एवरेज, इफ नॉट एट ऑल एवरी ईयर, एवरेज ऑफ 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, एंड पिछले 1-2 साल से नहीं पूछा है तो चांसेस हैं 26 में या 27 में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। एंड हाउ डू वी नो? So this is the question that was asked in 2013 for 10 markers to be written in 200 words. Establish the relationships between land reforms, agricultural productivity, and elimination of poverty in the Indian economy. Okay, discuss the difficulties in designing and implementation of agricultural friendly land reforms in India. So this is the question that came in 2013. So जो हमने डिस्कस किया था आंसर उसी से बनेगा। तो I'll upload the PDF of what we discussed today in the Telegram group. And if you guys are interested, you guys can write this answer and put it on the Telegram group. And next session में मैंने इसका जो मॉडल आंसर बनाया है वो भी डिस्कस कर लेंगे, जिसका बेटर होगा वो ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, यू गाइस कैन राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। बट वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद रिस्पेक्ट टू by incorporating 2 topics. First is what we studied in land reforms, which is there in your GS3, and one part of the question that has been asked is given as your syllabus in GS paper 2. So till then you guys can figure out which part of the syllabus is there in GS2 which has been asked over here and how that can be used to answer this question. Till then, you can solve it and we'll meet in the next session.